हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग पॉइंट। आज हम एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए एलजेब्रा चैप्टर्स के टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 91 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। सो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, the formula of it is a minus b whole thing square plus 3ab. One formula is this and other formula is a minus b a square plus b square plus ab. So both of this formula is for a cube minus b cube. Okay, depending on what they give you, you will use both of these formulas. So in this case, two things are given to you. आपके पास दो चीज दिया है, a cube minus b cube. You have the value of this one, a minus b. This one is given to you, and you just need to find the value of ab. So better to use this first formula because a square plus b square value is not known to us. That is why we will be using the first formula. Okay. So a cube minus b cube. In place of this, I'll be writing 91 is equal to a minus b. A minus b value is 1 bracket. Then again what? A minus b whole thing square. That means what? 1 square plus 3 times ab. Okay. So I don't know the value of ab and I need to find that only. So this becomes 91 is equal to 1 square is nothing but 1 plus 3ab. If I take this 1 into left hand side, so this will be 91 minus 1 is equal to 3ab, and similarly this will be 90 is equal to 3ab, and therefore ab is nothing but 90 divided by 3, that is 30. So the answer of first question is option number 4, 30. Moving to the second question. In this question also, a minus b equal to 4 is given to you, ab is equal to minus 3 is given, and what is the value of a cube minus b cube? Okay, so the formula will remain same only. In this case, you need to find the value of a cube minus b cube. What is the formula? A minus b square bracket a minus b whole thing square, then plus 3 times ab. Okay, so I need to find the value of a cube minus b cube this time. So a minus b is given to me how much? 4. So I place 4 here. What about a minus b whole thing square? Means what? 4 square plus 3 times ab. ab is how much? Minus 3. In place of ab, I'll be writing minus 3. Correct? Okay. So 4 is 4. 4 square is how much? 16 plus 3 into minus 3 will be how much? Minus 9. Correct? So 4 remains outside. Here we have 16 plus minus 9. Basically minus 9. So 16 minus 9 will be how much? It will be 7, right? So 4 into 7, that will be 28. So the answer is option number 2, 28. Moving to the third question, here it is saying a cube plus b cube. So we have already known what is the formula of a cube minus b cube. Now just let's see what is the formula of a cube plus b cube. The formula is a plus b bracket a plus b whole thing square minus 3ab. Okay, so just like a cube minus b cube, let me just write that also. A cube minus b cube formula was what? It was a minus b, then square bracket a minus b whole thing square and plus 3ab. Okay, so when you are finding plus, that is a cube plus b cube, you will be writing a plus b whole root over square bracket a plus b whole thing square minus 3ab. So in this particular case, I'll be using this formula only. That is the first formula. Okay, a cube plus b cube formula. Okay, so a cube plus b cube is given to me, that how much? 152. Let me just rewrite this formula again, a cube plus b cube formula here, just to make it little bit more correct. That is a plus b whole thing square minus 3 times ab. Okay, so a cube plus b cube value is given to me, that is 152. Let's write 152 here. What about a plus b? It is given to me 8, so I'm writing 8 here. Again a plus b whole thing square, that is 8 square and minus 3 times ab. Okay, so I need to find the value of this ab only. Now 152, if I just take this 8 here, it will be divide. So 852 divided by 8, and what remains here is 8 square is 64 minus 3 times ab. Correct? Now what I'll get from here? I'll be getting 8 ones are 8. So now 7 is carry 72, that is 8 nines are 72. So I'm left with 19 is equal to 64 minus 3 times ab. Okay, so if I take this 3ab here, minus 3ab will come to this side and become plus 3ab. 64 remains here only, and I am taking minus 19 to this side, so it become minus 19. Correct? So what I get here is 3ab is equal to 64 minus 19 will be how much?
if I subtract 14 minus 9, it will be 5, and 5 minus 1 will be 45. So AB will be nothing but 45 divided by 3, that is 15, right? So your correct answer is 15, that is option number 4. Okay, so our fourth question, it's stating that x plus 4 y plus z is equal to 12, xy plus yz plus zx is equal to 44, and xyz is equal to this much, and they're asking me to find the value of x cube plus y cube plus z cube. Okay, so for this also there's a formula, and this formula is very widely used in specifically for SSC exams, that is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. If you do, you'll be getting what? It will be x plus y plus z, then again x plus y plus z whole thing square minus 3 times xy plus yz plus zx. Okay, so you need to remember this formula. So what is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz? It is x plus y plus z multiplied by x plus y plus z whole thing square minus 3 times xy yz plus zx. Okay, so just put all the values that is given to you, and they are asking you find the value of x cube plus y cube plus z cube. So I don't know this particular value, rest everything I will know. Okay, so let me just write it here, x cube plus y cube plus z cube minus 3 xyz is given to me, that is 48. So in place of xyz I'll be writing 48 is equal to x plus y plus z. How much it is given to you? That is 12. So let's just write 12 here. What about next? 12 square, writing 12 square. Okay, and then minus sign is there, 3 times xy plus yz plus zx. That value is also given to you, how much? 44. So I'm just writing 44 here. Okay, so I've just placed the values that is given to me in the question itself, and then just solve it. So x cube plus y cube plus z cube remains this only, minus 3 times 48 I want to do, right? So this will be how much? 48 into 3 times is 8 3s are 24, 4 3s are 12, and 144, correct? So it will be 144. Now here I have 12, and 12 square is again what? 144 minus 44 into 3 this time. So this will be 4 3s are 12, and then 4 3s are 12, that is 13, 132, correct? So now if I just solve this one, 12 times 144 minus 132, if I do, what I will left with? It will be 12 only, correct? So let me just check this one here. 48 into 3 times if I want to do, 8 3s are 24, correct? 4 3s are 12, 144, yeah. 48 into 3 is 144 only. 12 square is what again? Yeah, it is 44, 144 minus 44 into 3 times again, okay. Yeah, so 44 into 3 times is this only. Yeah, fine. So we have 12 into 12 left, that is 144, okay. So I need to find the value of x cube plus y cube plus z cube. So this minus 144 that I have, if I just take it here, it will become plus 144, okay. So 144 plus 144 will be how much? 288, and that is your correct answer, that is option number 4. Moving to the next question, it says a plus 1 upon a is equal to 2, then what is the value of a to the power 118 plus 1 upon a to the power 117. Okay, so whenever you get this type of form, that is x plus 1 upon x is equal to 2, okay, let me just make it a bit darker, that is x plus 1 upon x is equal to 2. Whenever you get this type of form, okay, when a number plus reciprocal of that number is equal to 2, that number has to be equal to 1, okay, other than that you cannot satisfy. If and only if the value is 1, see, if I write 1 in place of x here plus 1 upon again 1 here, then only it will become 2. Other than that, if you keep any other number other than 1, it will not satisfy this particular equation, okay. So जब भी आपको दिखता है कहीं पे भी x plus 1 upon x, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a plus 1 upon a is equal to 2, तो आपको a पता होना ही चाहिए कि a का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. सो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे उसका a का वैल्यू कितना हो जाता है 1. अब एक बात बताओ, आपको कुछ भी कितना ही बड़ा नंबर दे दिया, a to the power 118 plus 1 upon a to the power 117, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल. 1 हमको पता है a का वैल्यू, 1 to the power एनीथिंग क्या रहता है? 1 ही रहता है, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको. सो 1 to the power 118 क्यों? अगर 1000 भी होता तो 1 ही रहता, प्लस 1 अपॉन 1 to the power 117 सेम. सो आंसर इज व्हाट? 2. ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम फॉर्मूला रिपीट हुआ है, देखो, और ये सब आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ओके. सो कुछ फॉर्मूलाज जो बार बार आते रहते हैं, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, ओके. So a cube plus b cube minus 3abc is again given to me, and I just need to write the formula here. क्या होता है फॉर्मूला? अभी लिखाया था हम लोगों ने.
ए प्लस बी प्लस सी, कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ए बी सी यूज़ किया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, अगर इसकी जगह आप एक्स वाई जेड यूज़ कर रहे हो तो भी सेम ही रहेगा फॉर्मूला. सो ए प्लस बी प्लस सी, देन आई राइट ए प्लस बी प्लस सी होल थिंग स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ओके, सो लेट मी जस्ट राइट द डिफरेंट वैल्यूज. आई जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. मुझे इसमें से कुछ भी नहीं पता, बस यहाँ पे आप बैठाते जाओ. ए प्लस बी प्लस सी चाहिए मेरे को, कितना उसका वैल्यू है 5. आई एम राइटिंग 5 हियर. स्क्वायर ब्रैकेट अगेन ए प्लस बी होल थिंग स्क्वायर, तो बी 5 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, उसका वैल्यू कितना दिया है 4, तो उसकी जगह मैंने बैठा दिया 4. सो दिस इज 5 टाइम्स 5 स्क्वायर इज व्हाट 25 माइनस 4 3 हाउ मच 12. सो आई एम राइटिंग 5 हियर एंड 25 माइनस 12 कितना होता है 13, and 13 into 5 is nothing but 65. So your correct answer is option number A. Moving to the next question. If this expression is equal to this much दिया है और उसको बोला है कि find the value of x, तो यहाँ पे भी हम लोग को एक important formula मिलता है. वो क्या होता है, अगर कभी भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो होता है वो अगर 3 टाइम्स ए बी सी के बराबर आपको दिखता है, ये कब होगा, ओनली एंड ओनली इफ, एक कंडीशन होता है, कब, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है. ठीक है, अगर ये जो तीनों नंबर है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब है, कब 3ab के बराबर होगा, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तभी ये चीज़ होने वाला है. ठीक है, एंड ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, और उसके साथ साथ हम लोग एक और रिजल्ट मिलता है क्या, a b और c जो होता है वो तीनों के तीनों बराबर होते हैं. सो दिस इज द कंडीशन कि कब ये होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर कब होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हुआ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसको कंसिडर करो एज ए होल, ये a है. ठीक है, ये आपको a पकड़ना है, ये आपको b पकड़ना है, और फिर ये आपको c पकड़ना है, और उसको सॉल्व करते हुए यहाँ पे आपको देखना है. तो मैं बोल रहा हूँ a लिखा है a क्यूब, बिल्कुल b क्यूब प्लस c क्यूब, अगर ये किसके बराबर होगा 3abc, क्या यहाँ पे 3abc लिखा है, देख लेते हैं. अगर मैं इसको 6 जो है इसको अगर मैं तोड़ के लिखता हूँ 3 इंटू 2, तो होगा क्या, देखो एक्चुअली मैंने क्या किया पता है, c जो था c, ये वाला टर्म से इन लोगों ने 2 कॉमन ले लिया है, तो c टर्म जो है, c टर्म लिखा क्या एक्चुअली 2x माइनस 4. यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या रहेगा x माइनस 2, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो x माइनस 2. इस तरह आपको दिख रहा होगा 2x माइनस 4, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है x माइनस 2. क्यों, क्योंकि मैंने 2 जो है बाहर ले लिया है, वो 2 यहाँ पे है एक्चुअली. ठीक है ना, 2 बाहर ले लिया है, तो x माइनस 2 को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ अभी, x माइनस 2 ये लिख लिया मैंने. 6 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 2, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं 3x प्लस 1 लिख देते हैं, 3x प्लस 1, और फिर क्या लिखूंगा x माइनस 3, तो लिख देते हैं यहाँ पे भी x माइनस 3. तो अब हुआ क्या, मैंने बोला कि a क्यूब, हाँ बिल्कुल सही, b क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर है 3 टाइम्स a क्या था 3x प्लस 1, दिख रहा है आपको 3x प्लस 1, ये रहा. b क्या था x माइनस 3, दिख रहा है, ये रहा b, और फिर क्या c क्या था 2 टाइम्स x माइनस 4, या फिर 2x माइनस 4, यहाँ पे दिख रहा है 2x माइनस 4. तो ये बिल्कुल मेरे को इस ए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो हमारा दिया हुआ है क्या, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा. क्योंकि अभी हमें मिल चुका है, तो मैं क्या बोलूँगा a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है. क्या मैं उसको बोल सकता हूँ, बिल्कुल. और एक चीज़ क्या, a b और c क्या है, तीनों के तीनों बराबर है. ठीक है, तीनों के तीनों अगर बराबर हैं तो मेरे को सॉल्व करना है. चलो मैं एक बार बोलता हूँ, क्या, तीनों को ऐड कर लेते हैं. अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तभी तो सेटिस्फाई हुआ है. a क्या था मेरा 3x प्लस 1, a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होना चाहिए, राइट. a का वैल्यू क्या है 3x प्लस 1, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3x प्लस 1. b मैंने किसको बोला है x माइनस 3 को, तो लिख देता हूँ यहाँ पे x माइनस 3, प्लस c किसको बोला है 2x माइनस 4 को, लिख देता हूँ यहाँ पे 2x माइनस 4, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा. तो अभी आपको जितने भी x वाले टर्म्स दिख रहे हैं उसको ऐड कर लो. यहाँ पे 3x है, यहाँ पे एक x है, और यहाँ पे 2x है. 3x प्लस x 4x, 4x प्लस 2x 6x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6x. अब जो बाकी कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो देख लो, 1 माइनस 3 माइनस 4, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, करेक्ट. 6x को इधर रहने दो, -6 को उधर लेके जाओगे तो +6 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/6, आंसर क्या हो जाएगा 1. तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन जो हमको दिया है वहां पे क्या बोला गया है, a:b:c इज इक्वल टू 1:3:5. 3 नंबर दिए आपको और तीनों नंबर के रेशियोज दिए हुए हैं 1:3:5, और फिर आपसे पूछा जा रहा है 4a माइनस बी प्लस 2c, 4a माइनस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी. तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट a b c का जो वैल्यू है वो 1, 3 और 5 ले सकते हैं, लेकिन कब लेंगे वो भी देखना है आपको. अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे मेरे को यहाँ पे क्या बोला गया है, ये चीज़ फाइंड करो, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होना चाहिए. डिग्री का मतलब देखो 4a माइनस बी प्लस 2c सारे के सारे एक सिंगल टर्म्स में है, a है यहाँ पे, b है यहाँ पे, c है, कोई स्क्वायर या फिर क्यूब में नहीं है ना.
तो इसका जो आंसर आएगा वो भी एक सिंगल टर्म में रहेगा। यहाँ पे भी सिमिलरली ए और बी और सी सब एक सिंगल टर्म में है, उसका डिग्री क्या है 1 है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। लेकिन सपोज अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा जाता कि 4a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस सी निकालो, तब आप यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू डायरेक्ट मत बिठाइएगा, क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वहाँ पे क्या है, देखो 4a तो ठीक है, बी स्क्वायर हो गया, डिग्री यहाँ पे चेंज हो चुका है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिग्री यहाँ पे भी फिर भी 1 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर सेम ना हो तो आप रेशियो डायरेक्ट नहीं बिठा सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ऊपर भी हमारा डिग्री 1 है, नीचे भी हमारा डिग्री 1 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो बिठा सकते हैं। इसका मतलब क्या, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है 5, ये डायरेक्ट बिठा सकते हैं आप। तो मैं बोलूँगा 4 टाइम्स ए मतलब 1 माइनस बी मतलब 3 प्लस 2 टाइम्स सी मतलब 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5। अब 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 बिल्कुल सेम रहेगा और 5 टू ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9 9 3 ज़ा कितना होता है 27, करेक्ट। सो अब मेरे को यहाँ पे देखना है 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा 11। सो आंसर विल बी 11/27 जो कि है ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका x का वैल्यू कुछ दिया है और आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3। इसका मतलब क्या होता है, आपको निकालने के लिए बोल रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्चुअली, ठीक है, ये आपको निकालने के लिए बोला है। कभी भी x के ऊपर कुछ माइनस टू द पावर समथिंग जब चार्ज रहता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स टू द पावर माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है 1 अपॉन एक्स। अगर होता है एक्स टू द पावर माइनस 2, इसका मतलब क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया एक्स टू द पावर माइनस 3 मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आपको कुछ दिया भी हुआ है क्या, x का वैल्यू दिया है आपको 2 प्लस रूट 3। नाउ जब भी आपको ऐसा कुछ पार्ट मिले, ठीक है, जहाँ पे कुछ एक रूट में वैल्यू रह जाए, जैसे कि यहाँ पे रूट 3 वैल्यू दिया है, तो हमेशा कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो मुझे वैल्यू भी निकालना है 1 अपॉन एक्स का, ठीक है। एक्स का वैल्यू मुझे पता है 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब अगर मैं इसके ऊपर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 है, तो उसके ठीक ऑपोजिट वाले नंबर से या फिर उसके ठीक ऑपोजिट वाले साइन से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया 2 माइनस यहाँ पे, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 था तो मैंने यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो बचेगा क्या, ऊपर क्या है देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 है, तो ये तो 2 माइनस रूट 3 रहने वाला है। नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखो ये है 2 प्लस रूट 3, क्या है 2 माइनस रूट 3, ये कुछ आपको फॉर्म याद आ रहा है, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए है वो मेरा 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा 2 माइनस रूट 3 रहने वाला है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 4 माइनस 3 का वैल्यू कितना होने वाला है 1। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो एक्चुअली क्या रहने वाला है 2 माइनस रूट 3। तो मैंने बोला x का वैल्यू कितना है 2 प्लस रूट 3, 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है 2 माइनस रूट 3। अभी आप बस एक चीज़ छोटा सा करेंगे क्या, क्योंकि आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना है 2 प्लस रूट 3, लिख दो 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना अभी निकाला हमने 2 माइनस रूट 3, लिख दो 2 माइनस रूट 3। यहाँ पे प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 जो बचेगा वो क्या है 4। सो जैसे ही आपको ये वैल्यू मिल जाता है उसके बाद क्वेश्चन रहता नहीं कुछ, एक फॉर्मूला बस हमको यूज़ करना है, वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने 4, और निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और आपको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला पता है, तो जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल थिंग क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये होता है फॉर्मूला। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल थिंग क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके। सो मुझे पता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 का होल थिंग क्यूब माइनस 3 टाइम्स 4, करेक्ट। नाउ 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, माइनस 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। सो यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है दैट इज 52 एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। अभी जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया इससे पहले वाला क्वेश्चन, बिल्कुल उसका ठीक ऑपोजिट वर्जन यहाँ पे दिया है आपको। इससे पहले आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दिया था, अभी आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दिया है 10, और आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो बिल्कुल उसी तरह है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ और इसको आप प्लीज़ नोट डाउन करके रखिएगा एक कॉपी में, फॉर्मूला का अलग से कॉपी बनाइए एंड नोट इट डाउन इन योर फॉर्मूला कॉपी। सो ओके, हेयर
यहाँ पे हमको प्लस नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए माइनस, राइट। सो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला बिल्कुल पहले से ही है, क्या, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल थिंग क्यूब प्लस 3 टाइम्स x plus x minus 1 upon x. Okay, let me just correct this one also, this is minus. So x minus 1 upon x whole thing cube plus 3 times x minus 1 upon x is nothing but x cube minus 1 upon x cube. Okay, so मुझे यही वैल्यू फाइंड करना है, x minus 1 upon x का वैल्यू मुझे पता है 10, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 10 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 10. So 10 cube is nothing but 1000 plus 3 times 10 is what, 30. So your answer is 1030, which is option number 4. So I have written this formula here, x cube minus 1 upon x cube, and let me just write the other formula also, that is x cube plus 1 upon x cube का formula जो होता है, that is x plus 1 upon x whole thing cube minus 3 times x plus 1 upon x. Okay, तो बिल्कुल सेम है ये दोनों formulas भी. अगर आप प्लस यूज़ कर रहे हो तो सब जगह प्लस होगा, बस ये बीच में माइनस होगा, और अगर माइनस यूज़ करो तो सब जगह माइनस ही होगा, बस यहाँ पे बीच में प्लस होगा. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट भी है, ये दोनों फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अलजेब्रा चैप्टर. थैंक यू. एंड इफ यू लाइक द वीडियो टिल नाउ, please subscribe, and we are expecting to do more videos like this which will surely help you in your future exams. Okay.